Uh, Hello, good afternoon. We'll just wait for a minute and then get started. And please switch on your videos in the meantime. Please switch on your videos, then we will get started. Yes, great. Okay, we will get started. Good Mavish, आपका वीडियो ऑन है. तुलसी, वेरी गुड. बाकी लोग भी प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और ऑन रखिए, उसको बंद नहीं करना है फिर उसके बाद. ओके, we'll get started. You can see my screen. Can you see? Yes, sir. Okay, Yes, okay, sir. great. Okay. So कल तक हमने जो चीजें पढ़ी थी, बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ी थी. काफी हद तक आपने को पहले से भी वो चीजें पता है कि न्यूक्लियस क्या होता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं. उसमें हमने ये देखा कि न्यूट्रॉन्स इनिशियली क्यों नहीं डिस्कवर हुए. क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं और ज्यादातर हम चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे थे बिकॉज ऑफ देयर डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स. और obviously because they being neutral they didn't get deflected, so उनकी presence was not easily felt. बाद में लोगों को लगा कि रेडिएशंस आते हैं जिनको उन्होंने गामा रेस समझा. कुछ समय तक गामा रेस आर वेरी हाई एनर्जी रेस, जो हमने जब व्हेन वी स्टडीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो हमने देखा था जो हमारे स्पेक्ट्रम में हाईएस्ट एनर्जी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं वो गामा वेव्स होती हैं, जो बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल में से भी एमिट होती हैं. तो पहले उसको वो समझा, बट because they could knock out protons from some light nucleus, it was clear that they are not gamma rays, and then based on that Chadwick said they are neutrons. ठीक है. तो अब the second thing was to understand and figure out the size of the nucleus. A rough idea of the size of nucleus Rutherford already established कर चुका था by measuring the distance of closest approach. राइट कि अल्फा पार्टिकल कितने पास तक उसने एक एनर्जी दी, मान लीजिए 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो उससे जितना उसके पास तक जा सकता है और वापस आ सकता है, उससे ज्यादा एनर्जी दी. तो एक समय आया जब ही स्टार्टेड सीइंग डेविएशंस इन हिज रिजल्ट्स, व्हिच मेंट कि वो समय है जब the Coulomb force is no more active, some other force became active at that time. Okay, that was a estimate of the initial size of the nucleus, but alpha particles are themselves pretty massive and big relatively. So later that there was an improvement made in that measurement by using high energy electrons. ठीक है. तो उनके जरिए हमें पता चला कि जिसको हम न्यूक्लियस का साइज, the smallest nucleus is a proton, right? जो प्रोटियम क्या होता है? The lightest isotope of hydrogen, right? That is, this is the smallest nucleus possible. तो उसका साइज जो आया by this closest approach was
1.2 into 10 raised to the power minus 15 meter, okay, which is roughly 10.5 times smaller than the atom. And most of the mass was concentrated here. इसका मतलब है कि this is very, very dense material. Okay, the density of the nucleus is of the order of 10 raised to the power 17 kg per meter. ठीक है ना। अब जैसे कि हम जानते हैं कि पानी का क्या होता है डेंसिटी, कोई बताएगा पानी का डेंसिटी? What is water's density? Anybody remembers? 1000 kilogram per meter cube, right? और मर्क्यूरी का अगर हम देखें तो रफली अराउंड 13 something like this. Gold ka would be something like this. Roughly I am telling you the numbers, right? Compare this with this. Okay, this is much higher. Okay, roughly 10 raised to the power 14 times more. Okay, so it is a very, very dense material. Okay, nucleus is very, very dense. Okay, now हमें प्रोटियम का न्यूक्लियस साइज का आइडिया है. If I want to find the size of the nucleus of some other element, right, other isotope, right, तो अगर उस आइसोटोप का, ये हमारा आइसोटोप है कोई, right, तो उसका न्यूक्लियर साइज किस पे डिपेंड करेगा, ए पे करेगा या जेड पे करेगा? Can somebody answer? कि size of nucleus depends on A और Z? सर ए. A, राइट, क्योंकि उसमें न्यूक्लियॉन्स होते हैं, दोनों चीजें होती है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, तो दोनों ही उसके साइज को इंपैक्ट करेंगे. लेकिन अगर क्वेश्चन होता साइज ऑफ एटम डिपेंड्स ऑन, साइज ऑफ एटम किस पे डिपेंड करेगा, ए या जेड? सर जेड पे करेगा. जेड पे करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कितनी जगह लेते हैं वो ज्यादा बड़ी चीज है, न्यूक्लियस का साइज डजंट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ओके, तो अब ये रिलेशनशिप क्या है बिटवीन ए एंड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस. सो ये जो रिलेशनशिप है हम रेडियस की निकाल रहे हैं, तो रेडियस is equal to the radius of the protium into the cube root of A, right? So it is directly proportional to cube root of A. अब हो सकता है देखने में लगे यार ये क्यूब रूट कहां से आ गया है इसमें, ये तो हम ज्यादातर चीजों में कभी स्क्वायर होता है, कभी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होती है, क्यूब रूट कहां से आ गया अचानक, right? It is not very surprising, okay, because actually A जो है, A should be directly proportional not to the radius but to the volume, right? अगर A वॉल्यूम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस की थर्ड पावर से, राइट? सो इसका मतलब यह है कि रेडियस शुड बी प्रोपोर्शनल टू the cube root of A, right? So this is not surprising, it is easy to understand. So this relationship you should know, and it is a very simple relationship. Now before we move forward, अभी हम आगे ये समझेंगे कि न्यूक्लियस कैसे जुड़ा होता है आपस में, क्योंकि that was initially a mystery कि आखिर न्यूक्लियस जुड़ा हुआ कैसे है आपस में, क्योंकि उसमें तो या तो पॉजिटिव चार्जेस हैं या फिर न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, तो द आइडियली दे शुड ऑल बी रिपेलिंग ईच अदर. वो आपस में कैसे जुड़ा हुआ है
हमको वो समझना है। तो उससे पहले लेट्स लुक एट दिस फेमस इक्वेशन बाय आइंस्टाइन। आइंस्टाइन की क्या इक्वेशन है ये? मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है? कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? This is such a famous equation. If you are a physics student, this is what represents physics today, right? तो ये इक्वेशन का मीनिंग क्या है? कोई बता सकता है? No, sir. Okay, no issues. तो E stands for energy. Okay, M stands for M mass. mass, and C is the speed of light. Speed. Okay, now this relationship पर से कि एनर्जी और मास का रिलेशनशिप है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं, जो इसी के जैसा है ऑलमोस्ट, राइट? दिस इज काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, ऑल्दो देयर इज नो हाफ हियर, बट इट इज अ वेरी सिमिलर फॉर्मूला, राइट? तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है? व्हाई इज दिस इक्वेशन सो इंटरेस्टिंग? पहले हम क्या मानते थे कि मास मास होता है और एनर्जी एनर्जी होती है। ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। मास कंजर्व्ड होता है और एनर्जी भी अपने आप में कंजर्व्ड होती है। ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है या डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इनकी केवल फॉर्म्स चेंज हो सकती है। ये इक्वेशन क्या कर रही है? ये मास और एनर्जी को इक्विवेलेंट बता रही है। ये कह रही है कि मास और एनर्जी जो है ये एक्चुअली अलग चीजें नहीं है। मास एनर्जी में बदल सकता है और एनर्जी मास में बदल सकती है। ये एकदम पाथ ब्रेकिंग आइडिया, ये एकदम ऐसी चीज थी जो पहले आइंस्टाइन से पहले किसी ने नहीं सोची, ठीक है? ये इसने जिस तरह से हम फिजिक्स को आज समझते हैं, एक जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है जो हम अभी बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स, जिससे हमने एटम बोर जो बोहर की हमने थियरी समझी, जो क्वांटाइजेशन की थियरी थी, या फिर ये सब चीजें हैं जिन्होंने फिजिक्स का स्वरूप बदल दिया, ठीक है? अब हम ये जानते हैं कि मास एक तरह से एनर्जी का ही एक दूसरा रूप है और एनर्जी जो है वो मास से बन सकती है, ठीक है? तो अगर कहीं पे मास डिस्ट्रॉय होता है तो हम तो समझते थे मास डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, लेकिन अगर मास डिस्ट्रॉय होता है, अगर मास कहीं गायब हो जाता है, तो वो ऐसे तो कहीं गायब नहीं होगा, वो इस फॉर्मूले के आधार पर एनर्जी में बदल जाए। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस formula. E is equal to mc square. Okay, and this formula is known as mass energy equivalence. Okay, तो ये इस बेसिस पे हम अब ये जानेंगे कि एटम का जो न्यूक्लियस है वो आपस में कैसे जुड़ा है और उसको जोड़ने या उसको ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लगती है, और दैट विल बिकम द बेसिस आगे चल के फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इस चैप्टर के एंड में हम ये समझेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है, चाहे वो एटम बम हो, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट हो, वो कैसे काम करते हैं। ओके, ठीक। तो जब ये एक प्रोटॉन है, मान लीजिए ये दूसरा प्रोटॉन है और ये मान लीजिए दो न्यूट्रॉन्स हैं, जब ये सब आपस में आकर जुड़कर एक न्यूक्लियस बनाएंगे, तो आइडियली ये जो है, सॉरी, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये रिपेल कर रहे थे अपने आप,
बिकॉज ऑफ कूलम्स फोर्स। लेकिन जब हम इनको और पास लाते जाते हैं और हम इनको जोड़ देते हैं तो ये जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब ये क्यों जुड़े रहते हैं? क्योंकि जो इन सब का मास था, इनका जो सम ऑफ मासेस था यहां पे, और जो न्यूक्लियस का मास है, तो न्यूक्लियस का मास इनके सम ऑफ मासेस से थोड़ा सा कम होता है, यानी कि some amount of mass is lost when we combine all of them into one nucleus. Okay? तो ये जो है, ये जो मास लूज हुआ, ये क्या बन गया? ये एनर्जी बन जाती। अब ये एनर्जी बन के इसमें से निकल गया। ये इतना मास हमारा लूज हुआ, डेल्टा एम से हम दिखा रहे हैं जो मास लूज हो गया, इंटू सी स्क्वायर, यानी इतनी एनर्जी बन गई और ये इसमें से चली गई। अब इसको तोड़ने के लिए जब तक हम वापस ये एनर्जी इसको नहीं देंगे, ये नहीं टूटेगा। और इसीलिए न्यूक्लियस बहुत हार्ड होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, इजिली नहीं टूटता है, क्योंकि एक बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए टू ब्रेक इट अगेन। And that energy was actually created by loss of mass. Okay? इस एनर्जी को, जिससे ये आपस में जुड़ा है, जुड़ने का मतलब बाइंड हुआ है, उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। ओके? अब बाइंडिंग एनर्जी हमको कैलकुलेट करनी है न्यूक्लियस की, ठीक है, किसी भी एक न्यूक्लियस की। तो हम किस तरह से उसको कैलकुलेट करेंगे ये जानते हैं कि हमारे पास उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स को चलिए मैं ऐसे दिखा देता हूं, जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं, और जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं उनको ऐड कर लिया हमने, और उनके मासेस को सम कर लेंगे। masses of protons and masses of neutrons, और हम क्या करेंगे, इस सम में से we will subtract the mass of the nucleus. So this will give us our delta m. This will give us the loss of mass. ये जो डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। और एक बार हमने डेल्टा एम निकाल लिया तो वी कैन फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी एज डेल्टा एम सी स्क्वायर। माविश अपने को म्यूट कर लीजिए, यू आर ऑन अनम्यूट। ओके, ठीक है। अब ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको आइडिया होना चाहिए, याद हो तो बेहतर है, क्योंकि कई बार ये नहीं भी गिवन हो सकती है। तो याद रखिए, न्यूट्रॉन की होती है इन यूनिफाइड AMU 1.00866 या 1.008665। ओके, प्रोटॉन की होती है 1.00727। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन जो है थोड़ा सा हैवी होता है कंपेयर्ड टू प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो इन सब से बहुत कम है, जो 0.00055, राइट। सो यू कैन सी these are just double zeros after one, and this is 0.00055. ओके, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, ये हम याद रखते हैं, और आगे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ऑल दिस विल बिकम वेरी क्लियर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इट इज फाउंड दैट द एटॉमिक मास ऑफ
an isotope of oxygen with atomic mass number 16, and obviously the atomic number is 8, is 15.99493 unit. Find its binding energy. ओके तो अब ये जो मास है ये एटॉमिक मास है, यानी कि पूरे के पूरे एटम का है। पूरे एटम का मास क्या होगा? पूरे एटम का मास क्या होगा? पूरे एटम का मास होगा, न्यूक्लियस है एक और एक इलेक्ट्रॉन्स है उसके चारों तरफ। छह इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, और ये दो, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स और बीच में न्यूक्लियस, राइट। इसका मास, इस पूरी चीज का मास ये है। अब हमें इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालनी। तो सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी में हमारा इन इलेक्ट्रॉन्स का कोई काम नहीं, राइट। इलेक्ट्रॉन्स हैव नथिंग टू डू विद बाइंडिंग एनर्जी। सो इस मास में से हम इलेक्ट्रॉन का जो मास है कितना होता है? 0.0055, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इंटू 8। ये जो मास है ये हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द ऑक्सीजन एटम मिल जाए, राइट। तो व्हाट इज दिस नंबर नाउ? दिस इज 440। ओके, सो ये हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो वी विल गो अहेड एंड डू दैट। So this is the mass of the nucleus, right? Now we should find the mass of the protons in the nucleus and the mass of the neutrons, right? So now let's first find the mass of the protons. कितने protons हैं इसमें? 8 protons हैं, तो 8 into mass of the proton. The mass of the proton is taken to be this, right? 1.00727. And we will also find the mass of the neutrons, which is also 8 neutrons, 16 minus 8 into 1.00866, right? So we have to calculate this, which is 6. Right, so the total mass of the constituents is, we will add these two numbers. Okay. Okay, so this is the mass of the nucleus, that constituents of nucleus, right? From this we will subtract the mass of the nucleus, which is in truth found out, right? So we will do that. 9949. This we will subtract, so we will get to 1, we will get to 5. Okay, so this is the delta M. Okay, we have found the delta M now. Now how do we convert this into the energy?
How will we convert it into the energy? How will we convert it into energy now? This is delta M. Anybody can tell me? Anyone? Can anyone tell me this? आप सबका वीडियो ऑफ है, प्लीज वीडियो ऑन करिए अपना. Can you please switch on your videos? बेटा आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगी, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस. वीडियो ऑन करिए प्लीज. हाँ ठीक है, तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे, राइट? लेकिन एनर्जी मान लीजिए हम जूल्स में निकालना चाह रहे हैं, तो ये जो डेल्टा एम है ये किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए, तभी हम जूल्स में निकाल पाएंगे ये एनर्जी, राइट? क्योंकि ये तो हमें पता है मीटर पर सेकंड में है हमारे पास वैल्यू 3 × 10⁸8, राइट? लेकिन ये वैल्यू यू में आई है अभी, तो वी विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द केजी फर्स्ट, राइट? So how much is 1 U equal to? 1 U कितना kg होता है, right? This is something we did in the beginning of the chapter, right? देखिए हमने कैलकुलेट किया था, this was the value of 1 U in kg, 1.66 into 10⁻⁻27, right? So हमें जो है वही यूज करनी है दोबारा, राइट? तो सबसे पहले इसको हम करेंगे 25 into 1.66 into 10⁻⁻27. Now it is in kg. So this is our mass defect in kg. After you have converted it into the kg, now you can use this formula and you will get the answer in joules. Okay, so energy released, the binding energy, now we can write it as EB, the binding energy is equal to this number, okay, into C square. Okay, C square is the square of 3 is 9 and square of 10 is 60. Okay, you solve this, you will get the binding energy of 1 atom of oxygen. Okay, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको करने आने चाहिए, राइट? दीज आर वेरी सिंपल, ऑब्वियसली लॉन्ग कैलकुलेशंस, बट कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही आसान है कि जो मास लूज हुआ वो E इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर के हिसाब से एनर्जी में बदल गया. टेक केयर ऑफ द यूनिट्स, दैट्स इट. ठीक है, तो अब हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी तो आ गई, लेकिन अब बाइंडिंग एनर्जी जो है ये एक नॉर्मलाइज्ड नंबर नहीं है, यानी कि क्लियरली जो छोटा न्यूक्लियस होगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, जिसमें जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही
ज्यादा होगी क्लियरली, राइट? इट इज लाइक द टोटल मार्क्स इन अ क्लास. That's not important, right? What will tell us the real performance of a class? The average marks, right? So we have to find another quantity, not just the binding energy. Binding energy is a useful quantity, लेकिन अगर हम दो न्यूक्लियस को कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा न्यूक्लियस में बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा लगी, यानी वो ज्यादा टाइटली जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए हमें उसकी एवरेज निकालनी है, एवरेज पर न्यूक्लियन. ठीक है, तो ये कैसे आएगी क्वांटिटी? जो भी हमारी बाइंडिंग एनर्जी आई उसको जो है हम किससे डिवाइड करेंगे? बताइए किस चीज से डिवाइड करेंगे उसको? वैसे शीट पे भी लिखा हुआ है एक्चुअली, आप पढ़ के भी बोल सकते हैं वहां से, लेकिन बताइए. किस चीज से डिवाइड करने से एनर्जी पर न्यूक्लियन आएगी? बाय द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस. और नंबर ऑफ न्यूक्लियंस क्या चीज सिग्निफाई करती है? मास नंबर, राइट? सो एनर्जी पर न्यूक्लियन, जो हम कहेंगे E, and binding energy per nucleon is equal to total binding energy by the number of nucleons, which is the mass number. ठीक है, अब हमने ये क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली फॉर ऑल द एटम्स, फॉर ऑल द आइसोटोप्स. ठीक है, और उसको हमने प्लॉट किया. एक्स एक्सिस पे रखा हमने अपना मास नंबर, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमने रखी वाई एक्सिस पर. तो जो प्लॉट हमारा आया वो ये आया, राइट? You can see this is the plot. What does this plot now show us? Okay, what this plot shows us is कि for very very light elements like the isotopes of hydrogen, okay, जो यहाँ पे हैं, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ही कम है. ठीक है, फिर ये तेजी से बढ़ती है till it reaches some early stage, early very light atoms, till about 10, 12, 13, right? Mass number, it moves rapidly up. Then it slowly moves up. It attains its peak at 56 mass number, which is an isotope of iron. Okay, and then it is roughly stable, between 30 here from silicon to all the way here, right, around 170 mass number. Okay, from 30 mass number to about 170 mass number, ये roughly stable है. There is not a huge variation. Okay, there is some variation, okay, but not a very big variation. After that, it continues to drop further. ठीक है, the peak is achieved at 56. okay, तो ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होने का क्या मतलब होता है? एक न्यूक्लियन है, एक न्यूक्लियस है जिसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, एक न्यूक्लियस है जिसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है. तो ये ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होना क्या सिग्निफाई करता है? Can somebody answer this question for me? कि किसी भी चीज में उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, इसका क्या मतलब है? Can anybody tell me that? बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो हमें देनी पड़े उस चीज को तोड़ने के लिए, राइट?
क्योंकि जिस एनर्जी से वो जुड़ा है उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी उसे वापस तोड़ने के लिए। तो बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो हमें उसको देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, ठीक है। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि उसमें से एक न्यूक्लियन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, और अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है तो इसका मतलब यह है कि उसमें से एक न्यूक्लियन निकालने में एनर्जी कम लगेगी। इन अदर वर्ड्स, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है वो न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड है, वो न्यूक्लियस को तोड़ना ज्यादा मुश्किल है, और जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है उनको तोड़ना आसान है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो रिलेटिवली अनस्टेबल है, क्योंकि उन्हें ज्यादा आसानी से तोड़ा जा सकता है, राइट। So this is just a, I gave a so okay, just to give you an idea, at 56 the peak of the binding energy per nucleon is 8.75 mega electron volt. Okay, so it is a very big number for subatomic levels. It is a very big number, because जो हमने energy levels of electron पढ़े थे, right, कि हाइड्रोजन में हमने पढ़ा था कि क्या आयनाइजेशन एनर्जी थी हाइड्रोजन एटम की। कैन समबडी रिमेंबर एंड टेल मी कि जो हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में ग्राउंड स्टेट पे क्या एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की इन हाइड्रोजन एटम? somebody remembers? That number is to be remembered. वो नंबर ऑप्शनल नहीं है, वो आपको याद रखना ही है। That number is 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जस्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये क्या है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा क्या होता है? 10 raised to the power 6, 1 million times, right? So this energy is roughly 1 million times, okay, than that of the energy of an electron in the hydrogen atom, right? So this energy is a huge energy compared to, so ripping out an electron from an atom is a child's play compared to ripping out a neutron or a proton from the nucleus. Okay, so ये magnitude important है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है? This is a number you should at least have in your mind, right? And minus 13.6 electron volt is a number you have to remember. That's not optional for you. ठीक है? We have come to the end of the class. We will move from here to understand how the fission and other reactions of nucleus happens. Okay? So that we will do in the next class.